Good morning everyone, I am Kawaljit Korwalia, roll number 225014 and my topic is the sphere. So first of all, the definition of a sphere is the locus of a point in space which remains at a fixed point is called a sphere. This is a sphere of radius r and it is a point P which whose coordinates are x, y, z. Equation of sphere whose center is a, b, c and radius is r can be written as x minus a whole square plus y minus b whole square plus z minus c whole square is equal to r square. Standard equation of a sphere. If the center of sphere is origin, then the equation of sphere will be, if this it will be at center, so we'll get to know that a, b, c will be 0. So the standard equation will be x square plus y square plus z square is equal to r square. For example, find the equation of a sphere whose center is 1, 2 and radius is 4. So we can write it as x minus 1 whole square plus 5 minus 1 whole square plus z minus 2 whole square is equal to 16. Now general equation of a sphere, the general equation is this. It represents the equation of sphere whose center. We can write from this equation the center can be written as minus u, minus v, minus w, and the radius can be written as under root u square plus v square plus w square minus d. For example, find the center and radius of the sphere. The equation is given. हमें इसका सेंटर और रेडियस निकालना है, तो यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे. u की वैल्यू यहाँ पे -1 है, v की वैल्यू +2, w की -3 फ्रॉम द इक्वेशन. तो सेंटर हमने अभी पढ़ा था माइनस का 1 हो जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 हो गया, माइनस का 2 and 3. एंड रेडियस वी कैन फाइंड आउट बाय द this formula u square plus v square plus w square minus t. So the equation will be the radius will come out as 5. So हमें center और radius निकालना था. Now the diameter form of sphere. The equation of a sphere whose ends of diameter are given. हमें एक sphere दे रखा है, उसके दो ends दे रखे हैं और उसके coordinates दे रखे हैं x1 y1 z1 and x2 y2 z2. तो उसकी equation हम लिखेंगे x minus x1 ब्रैकेट में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 ब्रैकेट y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 ब्रैकेट z माइनस z2 इज इक्वल टू 0. Then the equation of the sphere will be like the coordinates are given 1, 1, 2 and 0, 1, 2. So here we can write x minus 1 ब्रैकेट में x माइनस 0 तो वो x ही आ जाएगा प्लस y माइनस 1 फिर y माइनस 1 प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इज इक्वल टू 0. Now equation of a sphere through 4 non-coplanar points. हमें 4 नॉन कोप्लेनर पॉइंट्स दे रखे हैं जो प्लेन में नहीं है और हमें उन चारों पॉइंट्स की हेल्प से इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है. तो यहाँ पे हमने लिया है लेट x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, x3, y3, z3 and x4, y4, z4 be 4 points and the equation of sphere through these points will be. इक्वेशन हमारी जनरल यही रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. दस द गिवन पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस स्फीयर विल बी. हमने x1 को पहले इस इक्वेशन में लिखा तो हमारी इक्वेशन आ गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एंड सो ऑन. फिर x2 को रखा, फिर x3 को रखा, ऐसे ही हम x4 को रख देंगे. तो हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम ऐसे 4 पॉइंट्स से अपनी एक इक्वेशन निकाल पाए. Obtain the equation of the sphere having its center on the line 5y plus 2z is equal to 0 is equal to 2x minus 3y and passing through the points this and this. हमें एक लाइन, दो लाइन्स दे रखी हैं जिन पे स्फीयर का सेंटर है और हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं. Now we have to find out the equation of sphere. Let the equation of the sphere be. हमारी जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wx प्लस d इज इक्वल टू 0. द स्फीयर पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. हमें ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में रखेंगे. जब हम लोग 0, -2, -4 को रखेंगे तो x की प्लेस पे आ गया 0, वाई स्क्वायर मतलब 4 प्लस जेड स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू x 0 है तो ये टर्म 0 हो गया प्लस 2 इंटू वी इंटू वाई -2 तो यहाँ आ गया -4v, ऐसे ही -8w प्लस d एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू -20. -20 हमने इसलिए जहाँ ये 4 प्लस 16 ऐड किया था तो हमने इक्वेशन ही कर दी.
सेकेंड पॉइंट हम रखेंगे 2, -1, तो आ जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस d इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। इसके बाद हम लोग -4u प्लस 2v प्लस 2w माइनस d इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। ये दो इक्वेशन आ गई। नाउ द सेंटर ऑफ स्फीयर हमें पता है होता है -u, -v, -w। वो हमारा लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दे रखी है 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। y की जगह अब जैसे इन पे सेंटर लाई कर रहा है तो y की जगह हम -v रख सकते हैं, z की जगह हम -w रख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। एज इट इज़ हम लोग x की जगह यहाँ पे -u रख देंगे और y की जगह -v। तो ये हो जाएगा 5y प्लस 2w इज इक्वल टू 2u माइनस 3v। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशंस, हमारी 4 इक्वेशंस हमने फॉर्म कर ली हैं। एक हमारी ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3 एंड नाउ फ्रॉम दीज 4 इक्वेशंस हमने निकाल लिया 5v प्लस 2w इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से w की वैल्यू निकाली -5v/2 एज इट इज़ 2u माइनस 3v इज इक्वल्स टू 0 है, तो u की वैल्यू आ गई 3/2v, राइट। उसके बाद हम लोग ये जो u और v की वैल्यू हमने v की वैल्यू निकाली, u और w की वैल्यू निकाली है v के टर्म्स में, वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमें v और d के टर्म्स में इक्वेशन मिल गई 4v प्लस 8 और w की जगह मैंने लग दिया -5v/2 माइनस d इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन आ गई -16v माइनस d इज इक्वल टू 20। एज इट इज़ हमने दूसरे में लिख दिया। दूसरी इक्वेशन में हमने u की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 4u था, u की जगह हमने 3/2v लिख दिया और w की जगह हमने -5v/2 लिख दिया। तो ये v और d के टर्म्स में दूसरी इक्वेशन भी आ गई। -9v माइनस d इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन से मैंने v की वैल्यू निकाली 16v प्लस d इज इक्वल्स टू -20, 9v प्लस d इज इक्वल्स टू -6। नाउ एलिमिनेशन मेथड से v की वैल्यू आ गई -2। अब v की वैल्यू -2 आ गई, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, -9v माइनस d इज इक्वल टू 6। तो -9 इंटू -2 माइनस d, तो d की वैल्यू आ गई 12, u की वैल्यू आ गई -3, w की वैल्यू हमारी आ गई। फिर हमने जब हमारी v की वैल्यू आ गई तो v के टर्म्स में हमने u और w को लिखा ही हुआ था, तो w हमने निकाल लिया एज इट इज़, u निकाल लिया 3/2 इंटू v, तो u की वैल्यू आ गई -3 और w की वैल्यू आ गई -5/2 इंटू v की वैल्यू -2, तो w की वैल्यू आ गई 5। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमने स्फीयर की इक्वेशन में से रख दिया x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2 इंटू u x, तो 2 इंटू -3 -6x माइनस 4y माइनस 2 इंटू 2 किया तो -4y आ गया प्लस 5 इंटू 2 z प्लस d की वैल्यू हमने 12 निकाली थी, 12 इज इक्वल टू 0। सो ऐसे हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें 4 पॉइंट्स दे रखा है या फिर हमको एक दे रखा हो कि 2 लाइंस दे रखी हैं और उन पे स्फीयर का सेंटर लाई कर रहा है और 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो ऐसे हम लोग स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। Coming to the next question, this is a very important question of this chapter. इसमें क्वेश्चन है, a plane passes through a fixed point A, B, C. एक प्लेन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है एंड एक्सिस को कट कर रहा है A, B, C में. Show that the locus of center of the sphere OABC is A upon x plus B upon y plus C by z is equal to 2. हमको ये शो करना है कि जो सेंटर का लोकस है वो इस इक्वेशन से गिवन है। तो सोल्यूशन इसका होगा, हम चलते हैं लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इज इक्वल टू 1. दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 12th. तो हमने एक प्लेन बनाया और पॉइंट्स मार्क कर दिए। एज एक्स एक्सिस पे अल्फ़ा पे इंटरसेप्ट बन रहा है और बीटा इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे बन रहा है और गामा इंटरसेप्ट इसका जेड एक्सिस पे बन रहा है। सो हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। देन वी हैव मेड अ स्फीयर आउट ऑफ दिस, राइट। सो ये स्फीयर 4 पॉइंट से पास करा है। एक तो अल्फा 0,0, एक हो गया 0, बीटा 0 एंड द थर्ड पॉइंट इज 0,0, गामा एंड द फोर्थ पॉइंट विल बी 0,0, सेंटर से भी ये पास कर रहा है। नाउ द प्लेन पासिस थ्रू ABC. हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्लेन है वो एक फिक्स पॉइंट ABC से पास कर रहा है, तो हम लोग ABC को XYZ की जगह पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इज इक्वल टू 1.
नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर, हमें जनरल फॉर्म इक्वेशन की पता है जो हमने प्रीवियसली पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0. Now the sphere is passing through these 4 points as I have mentioned in the figure. एक हो गया अल्फा कॉमा 0 0 कॉमा बीटा कॉमा 0 0 कॉमा गामा एंड 0 0 0. Now now we'll get the equation x square plus y square plus z square minus alpha x minus beta y minus gamma z is equal to 0. ये इक्वेशन कैसे आई, हम लोग टाइम टू टाइम, जैसे पहले हमने अल्फा कॉमा 0 0 नहीं, सबसे पहले हम लोग 0 0 पॉइंट रखेंगे तो हमारा सारा 0 आ जाएगा और d की वैल्यू हमारी इससे 0 आ जाएगी. उसके बाद हम लोग रखेंगे पॉइंट अल्फा कॉमा 0 0 तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी अल्फ़ा के टर्म्स में. फिर हम लोग ये पॉइंट रखेंगे तो हमें v की वैल्यू बीटा के टर्म्स में मिलेगी, w की वैल्यू गामा के टर्म्स में. तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, u v w की वैल्यू हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो फाइनली विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई माइनस गामा जेड इज इक्वल टू 0. अब हम लोग सेंटर हम लोग इससे निकाल लेंगे. सेंटर हमें पता होता है कि हम लोग ऐसे माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्लू लिखते हैं, तो यहाँ पे बाय 2 करके लिखते हैं. तो सेंटर हो जाएगा अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 प्लस गामा बाय 2, राइट. और फिर हम लोग अल्फ़ा बाय 2 को x सपोज कर लेते हैं, बीटा बाय 2 को y सपोज कर लेते हैं, गामा बाय 2 को z सपोज कर लेते हैं, राइट. क्योंकि हमको सेंटर लोकस ऑफ सेंटर की इक्वेशन निकालनी है. फिर हम लोग अल्फ़ा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अल्फ़ा की वैल्यू 2x आ गई, बीटा की वैल्यू 2y, गामा की वैल्यू 2z. Putting this value of x, y, putting this value of alpha, beta and gamma in the equation this which we have created, हमने जो equation plane की बनाई थी, तो a upon 2x plus b upon 2y plus c upon 2z is equal to 1. और क्रॉस मल्टीप्लाई a upon x plus b upon y plus c upon z will be equal to 2. तो हमें ये प्रूव करना था, hence we have proved. यही क्वेश्चन में दे रखा था. थैंक यू एवरीवन.